So recall what I taught in class 9, the first chapter, French Revolution. The chapter starts with one rumor spread in all over France, and rumor was that the king had ordered, or king was to order, to fire on innocent people to shoot at sight. And on this rumor, people gathered, united, around 700 men and women gathered and started destruction in France. And they attacked on Bastille. They attacked on Bastille, and Bastille was, they attacked on Bastille. Bastille was a jail, and they destroyed Bastille and released all the prisoners. Not प्रिजनर जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, लेकिन जेल पे अटैक किया और पूरे जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने प्रिजनर्स थे सबको रिलीज कर दिया। नाउ क्वेश्चन कम्स टू अस कि वाज द rumor ट्रू? हैड द किंग ऑर्डर टू फायर ऑन इनोसेंट पीपल? और if the king had ordered, under what circumstances the decision was taken? क्या र्यूमर सही था? और अगर र्यूमर सही था तो अंडर what circumstances, किन परिस्थितियों में the king had ordered to fire on innocent people, or decision was taken by the king? क्या सचमुच में राजा ने आदेश दिया? और आदेश दिया तो वो कौन सी परिस्थिति होगी? On the other hand, why people targeted Bastille? Why people hated Bastille? क्यों लोग Bastille को टारगेट किया? हेटेड Bastille और टारगेटेड Bastille। Bastille को टारगेट क्यों बनाया लोगों ने? और हमने बताया था कि नफरत इतना था कि पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन द फ्रेगमेंट जो था वो उठा उठा के अपने घर लेकर चले आए, एंड रिमेन फ्रेगमेंट वाज सोल्ड इन द मार्केट। Bastille का पत्थर ले जाओ, Bastille का पत्थर ले जाओ। So what was the reason behind it? ठीक है। And now we have to read details about the dissatisfaction of the people or reason behind the French Revolution. And when we start the chapter, the first question comes to us: the date of the French Revolution, 14th July 1717. What? Anyone write down if you know the answer. 14th July. Yes, 79. Now, yes,
1789. That's the right answer. 14 July 1789 and 91 Constitution of France was written. है ना, 91 में संविधान लिखे गए. So 1 by 1 रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक एक करके हम लोग रीजन को पढ़ते हैं. फर्स्ट सोशल कॉज, यानी सामाजिक कारण. द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. फ्रांस का समाज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था. लाइक द सोसाइटी ऑफ इंडिया, द सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा सिस्टम. एंड द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, ESTAT. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट. Now question comes to us, who were there in the first state, who were there in the second state and who were there in third state. So clergy and nobilities were there in the first and second state, while the common people were there in the third state, like peasants, workers, laborers. Okay, they were there in third state. ये सारे लोग कहाँ थे भाई? ये सारे लोग थर्ड स्टेट. एंड द कंडीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाज वेरी गुड. दे वर एंजॉयिंग ऑल द प्रिविलेजेस. वो सारी सुविधा को एंजॉय कर रहे थे. while all the compulsion or restriction were imposed on the member of third state. जबकि सारी सब कुछ जो था वो थर्ड स्टेट पे लागू था. They were enjoying all the privilege while third state suffering in the society. And जब हम बात करें परसेंटेज ऑफ द पीपल, तो अराउंड 90% पीपल वर फ्रॉम थर्ड स्टेट. गरीबों की संख्या ज़्यादा थी, कॉमन पीपल की संख्या ज़्यादा थी. ओनली 10% और लेस देन 10% पीपल वर देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. दे वर एंजॉइंग और रोलिंग ऑन थर्ड स्टेट. सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द dissatisfaction of the people in France. Social diversity, social inequality in France was the reason behind the dissatisfaction of the people. लोगों को लग रहा था कि जब तक ये राजतंत्र है तब तक हमें यही झेलना होगा, चेंजिंग नहीं होगा. ओके, question comes to us, explain the social cause of the French Revolution. क्या क्वेश्चन होगा जी? What explain the society of France or why there were dissatisfaction among the people in France. Simple लिखेंगे. The society of France was divided into 3 states, first state, second state and third state. The condition of first and second state was very good, while the condition of third state was very miserable. They were suffering. On the other hand, the member of first and second state, they were enjoying all the privileges. First ये हो गया सोशल कॉज और सोशल कॉज. कुछ इसमें करना ही नहीं है, फिर सिर्फ 3 स्टेट को एक्सप्लेन कर देना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना.
लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन और भी है कि हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रॉम विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू, है ना। तो किंग ऑफ फ्रांस वाज लुइस 16। द किंग ऑफ फ्रांस वाज नोन एज लुइस। फ्रांस के राजा को लुइस कहा जाता था। लुइस 13, 14, 15, 16 लाइक दैट। तो दैट टाइम लुइस 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी था, और बर्बन डायनेस्टी के राजा लुइस 16 की शादी हुई थी मेरी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की वो राजकुमारी। नाउ इकोनॉमिक रीजन। When Louis XVI ascended to the throne after the demise of Louis XV, यानी लुइस 15 के मृत्यु के बाद जब लुइस 16 गद्दी पर बैठा, he got the treasury यानी खजाना बिल्कुल खाली। जब राजा लुइस 15 के बाद लुइस 16 गद्दी पर बैठता है तो देखता है कि राजकोष बिल्कुल खाली, और राजा का सबसे बड़ा हथियार क्या है, पावर क्या है भाई, वो है पैसा। पैसा के भाव में देश कैसे चलेगा। सो टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल, Louis 16 decided to take loan from the another country। दूसरे देश से वो लोन लेने का डिसीजन लिया। ठीक है, वो भी 10% इंटरेस्ट पे लोन लेता है दूसरे देश से, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फ्रांस। बट वो भी पैसा जो है आर्मी मेंटेनेंस एंड जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनके मेंटेनेंस में वो भी खत्म हो गया। वन मोर क्वेश्चन इज हियर, व्हाई द ट्रेजरी वाज एम्प्टी इन फ्रांस। तो इसका कारण था लॉन्ग टर्म वॉर, है ना। लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और इसमें आर्मी मेंटेनेंस में पूरा का पूरा खजाना खाली हो चुका था। अनदर क्वेश्चन इज देयर, लुइस 16 टुक द लोन, लेकिन वो भी लोन क्या हुआ, ये मेंटेनेंस में, आर्मी मेंटेनेंस में, और ये जो वीआईपीज थे इनके मेंटेनेंस खत्म हो गए। तो देश की स्थिति को सुधारने के लिए फाइनली लुइस 16 डिसाइडेड टू इनहांस द टैक्सेस। लुइस 16 ने डिसाइड किया कि वो टैक्स को बढ़ाएगा। मेरी आवाज जा रही है ना। टू इनहांस द टैक्सेस, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वाज कंडक्टेड। In the meeting of State General, 300 representative from the first state, 300 representative from the second state, and 600 representative from the third state were sent। 300 फर्स्ट स्टेट से गए, 300 सेकंड स्टेट से गए, और 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट वर सेंट। बट सिस्टम क्या था, डिसीजन वॉज टेकन अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट मेजोरिटी ऑफ द पीपल। डिसीजन लेने का जो सिस्टम था, वो सिस्टम क्या था, डिसीजन वॉज टेकन अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट मेजोरिटी ऑफ द पीपल। 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट,
तो 3 votes वर देयर, तो ये 3 में से 2 जो कह दिया वो मान लिया जाता था। यानी हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात मान ली जाती थी। बट इस बार क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सामान्य लोग नहीं थे, दे वर थिंकर, फिलोसफर, राइटर्स, एंड दे मोटिवेटेड द कॉमन पीपल, ओके, एंड दे डिमांडेड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। लोगों को भी मोटिवेट किया और वहाँ असेंबली में जाकर डिमांड किया कि डिसीजन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, नॉट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेना होगा अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, नॉट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। राजा ने कहा तब तक तो डिसीजन ऐसे ही लेते रहेंगे, इस बार भी डिसीजन ऐसा ही लिया जाएगा। सो पीपल बाइकॉटेड द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल एंड दे फॉर्म्ड वन अनदर असेंबली दैट वाज नोन एज नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को छोड़कर स्टेट जनरल के बदले में वो लोग वो स्टेट जनरल को बाइकआउट किया, वहाँ से ये दूसरे जगह गए, है ना, टेनिस कोर्ट में पहुँचा और वहाँ जा कर के उन लोगों ने कसम खाई भाई कि जब तक हम संविधान नहीं बनाएंगे, जब तक मोनार्किकल पावर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये एरिया नहीं छोड़ेंगे। ओके, वन असेंबली वाज फॉर्म दैट वाज नोन एज नेशनल असेंबली, and National Assembly in France drafted constitution. National Assembly in France drafted constitution, and constitution was drafted in 1791, यानी 14 जुलाई 1789। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1791 में संविधान बनकर तैयार हुआ। नाउ क्वेश्चन कम्स हियर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, है ना, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ थिंकर, फिलोसफर एंड राइटर। थिंकर, फिलोसफर्स एंड राइटर। और थिंकर, फिलोसफर एंड राइटर्स में आपको सारे लोगों का नाम याद करना होगा, कंट्रीब्यूशन क्या है वो, जैसे कल मैंने लिखवाया था, बुक्स वर रिटन बाय जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, है ना, दे मोटिवेटेड द कॉमन पीपल ऑन देयर ऑन वे। अपने अपने तरीके से उन लोगों ने कॉमन पीपल को मोटिवेट किया, ठीक है। तो सबका अपना तरीका था, सबने लोगों को मोटिवेट किया। राइटर ने लिखने का काम किया, फिलोसफर ने अपने ढंग से मोटिवेट किया, लीडर्स ने अपने ढंग से मोटिवेट किया, है ना। दे क्रिएटेड कॉन्शसनेस, है ना, एमंग द कॉमन पीपल। नाउ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की खासियत क्या है, ठीक है। इट मीन्स एक्सप्लेन, राइट डाउन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791।